हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन एक बार फिर आप सभी लोगों का टीम सुपर क्लस्टर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी क्लास 10th चैप्टर पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर रहे हैं, आज उसका तीसरा लेक्चर है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कल की चीज़ों को एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीखा, वैलेंसी सीखा, एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा, देन डिस्कस्ड अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और उनसे वेरिएशंस, किन फैक्टर्स पे ये चीज़ें डिपेंड्स करते हैं, इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट आप लोगों ने एक बार रिवाइज किया होगा। क्विक रिवीजन यहाँ पर भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, कल हमने बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स and valency. Then we have discussed about atomic size or atomic radii. Then ionization energy or ionization potential or ionization enthalpy. Then इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं रिवाइज कराता हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आई हैव टोल्ड दैट इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the outermost or valence shell of an atom or element, and maximum electrons in valence shell can't be more than 8, so maximum number of valence electron be 8. And if we know valence electrons, then we can find the valency of that atom. I have told that if valence electron is 1, then valency be 1. Valence electron is 2, valency is 2. Valence electron is 3, then valency be 3. And valence electron is 4, then valency is 4. For more than 4 valence electrons, valency is given by the formula 8 minus n, where n is the number of valence electron of given atom. So if an atom has 5 valence electron, then its valency is 8 minus 5, that is 3. 6 valence electron, its valency be 8 minus 6, 2. And if an atom has 8 valence electron, then its valency be 0. And we know that the valency of noble gases is 0. Then friends, we discussed about atomic size. I have told it is the distance between the center of nucleus to the outermost shell of given atom. Okay friends, and then I have told atomic size depend upon two things, that is number of shells and nuclear charge. Friends, I have told atomic size is directly proportional to number of shells and atomic size is inversely proportional to nuclear charge. Clear? ये बात आपको याद रखना है। And about nuclear charge, I have told that it is the charge that is present on the nucleus. और friends, nucleus में protons और neutrons होते हैं। proton पे positive charge, hence nuclear charge is always positive in nature. Whenever we are going to discuss about nuclear charge, means it is positive, always positive in nature. Then we have discussed about ionization energy. So it is the amount of energy required by isolated gaseous atom to convert it into positively charged ion by loss of electron or electrons. So friends, I have told whenever cations are formed, then electrons are lost by atoms. Then the energy required to lose electrons is called ionization energy, and it is measured in kilojoule per mole or electron volt per mole. Okay friends, ionization energy also depends on two factors, number of shells. Number of shells इतने ज़्यादा होंगे
न्यूक्लियर चार्ज उतना कम होगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज होगा, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होंगी। नंबर ऑफ शेल्स जितना ज़्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम चाहिए। And nuclear charge, second factor, and ionization energy is directly proportional to nuclear charge. Then friends, electron affinity. Anions के केस में whenever an atom gains an electron, then there is a release of energy. Ionization energy के केस में energy की requirement होती है, but in case of electron affinity, energy is released, and that energy is termed as electron affinity, and electron affinity is measured in kilojoule per mole. तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। फ्रेंड्स कल थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा था, लेकिन आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। Electron affinity is directly proportional to nuclear charge, and electron affinity is also directly proportional to number of shells. जितना ज़्यादा shells होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने में उतनी डिफिकल्टी होगी, सो एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होगी। क्लियर फ्रेंड्स? इतनी बातें हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था। लेट अस कंटिन्यू फर्दर। फ्रेंड्स नाउ we have to study electronegativity. Electronegativity. फ्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में इसको डिफाइन करें, इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स। 9th क्लास में आप लोगों ने कोवैलेंट कंपाउंड पढ़ा होगा। These are the compounds formed by sharing of atoms, sharing of electrons by atoms or group of atoms। जैसे फ्रेंड्स आप लोगों ने O2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखा होगा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। To attain stability, law of stability पढ़ा था। Every atom wants to accommodate 8 electrons in its outermost shell. अब here oxygen has 6 atom, oxygen has 6 atom. Both the atoms requires 2 electrons to attain stability. तो यहाँ पर ना तो ये ऑक्सीजन एटम प्रोवाइड कर सकता है ना ये, तो ये लोग आपस में शेयरिंग करते हैं और यहाँ पर इनके बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब फ्रेंड्स ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये ऑक्सीजन एटम चाहेगा हमारी और इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट रहे ताकि हमारी स्टेबिलिटी बनी रहे। दिस ऑक्सीजन एटम वांट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स हमारी तरफ अट्रैक्ट रहे तो हमारी स्टेबिलिटी बनी रहे। ड्यू टू दिस an attractive force is created, and that is called electronegativity, tendency to attract the shared pair of electrons in a covalent molecule. Clear friends? तो इसको हम लोग लिखते हैं it is defined as the tendency to attract the shared pair of electrons, shared pair of electron or electrons in a covalent molecule. Clear friends? Tendency to attract shared pair of electrons in a covalent molecule. Friends, it is a dimensionless quantity. It means electronegativity has no unit. It has no unit. This is a
compared between two atoms, tendency to attract the shared pair of electrons. दो कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं फ्रेंड्स. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव element, while halogen is the most electronegative group. ओके फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन बातें आपको याद रखनी है. Electronegativity is a dimensionless quantity, it has no unit. Fluorine is the most electronegative element, while halogens is the most electronegative group. Clear friends? Now let us see on which factors electronegativity depends. तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नंबर ऑफ शेल और न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, दैट इज नंबर ऑफ शेल्स एंड न्यूक्लियर चार्ज. फ्रेंड्स, एक यहाँ पे छोटी सी बात याद रखना है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर रहा है एटम, शेयरिंग हो रही है. यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, तो ये बात याद रखना है. अब फ्रेंड्स, नंबर ऑफ शेल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is inversely proportional to number of shells. ओके फ्रेंड्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करना, शेयरिंग एटम्स के लिए उतना ही डिफिकल्ट होगा, और उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इनवर्सली डिपेंड करेगा. व्हाइल electronegativity is directly proportional to nuclear charge. जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी उतनी ही कम होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी. क्लियर फ्रेंड्स? नंबर ऑफ शेल्स जितने ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां पे शेयरिंग की टेंडेंसी कम होती जाएगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली वेरी करेगा. व्हाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी. क्लियर फ्रेंड्स? Now we discuss about metallic and non-metallic character. फ्रेंड्स, मेटेलिक्स आप लोगों ने कल पढ़ा था. अगर किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 है, दैट इज सेड टू बी मेटल. Okay, and metals have tendency to lose electrons and they form cations, while an element have 5, 6 or 7 valence electron, then it is non-metallic and they form anions. अब दो एलिमेंट्स हैं और हमें बताना है कि कौन सा ज्यादा मेटेलिक है और कौन सा कम मेटेलिक है. तो फ्रेंड्स, an element said to be
more metallic if it loses electrons easily. Okay friends, suppose we have to compare between sodium and magnesium, which is more metallic. तो friends 281 282 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ. इफ इट लूजेस इलेक्ट्रॉन मोर इजिली, अब इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम लूज करेगा तो वहां पे मतलब आता है आयोनाइजेशन एनर्जी से. आयोनाइजेशन एनर्जी से आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एटम, एंड इट सेड टू बी मोर मेटेलिक. तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्लियर है, 3 शेल सोडियम के पास है और मैग्नीशियम में भी 3 शेल है. ओके, अब नंबर ऑफ शेल इक्वल है तो न्यूक्लियर चार्ज देखना है. न्यूक्लियर चार्ज जितना कम होगा उतनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी. तो सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. सो सोडियम इज सेड टू बी मोर मेटेलिक. सोडियम इज सेड टू बी मोर मेटेलिक देन मैग्नीशियम. ओके फ्रेंड्स, फिर से देखते हैं. सोडियम के पास 3 शेल्स है, मैग्नीशियम के पास भी 3 शेल्स है. ज्यादा मेटेलिक कौन होगा? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. अब व्हेन नंबर ऑफ शेल्स आर इक्वल देन वी हैव टू गो न्यूक्लियर चार्ज. अब न्यूक्लियर चार्ज सोडियम का कम है कंपेयर टू मैग्नीशियम. सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. न्यूक्लियर चार्ज का मतलब पॉजिटिव, एट्रैक्शन कम है और आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मैग्नीशियम के कंपैरिजन में. सो इट इज सेड टू बी मोर मेटेलिक देन मैग्नीशियम. क्लियर फ्रेंड्स? तो मेटेलिक कैरेक्टर, इफ एन एलिमेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन मोर इजिली देन इट इज सेड टू बी मोर मेटेलिक. अब फ्रेंड्स नॉन मेटेलिक इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा. If an element gains electron or electrons more easily then it is said to be more non-metallic. Clear friends? Suppose there are 2 atoms. The atom which has tendency to gain electrons more easily, it is said to be more non-metallic. Examples देखते हैं. सल्फर है एंड क्लोरीन है. फ्रेंड्स सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कन्फिग्रेशन 286. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कन्फिग्रेशन 287. फ्रेंड्स नंबर ऑफ शेल्स सल्फर और क्लोरीन दोनों में इक्वल है. क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है और सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन. तो क्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. सो क्लोरीन इज सेड टू बी more non-metallic compared to sulfur. Clear friends? Metallic character, the atom which loses electrons more easily is said to be more metallic, while if an atom gains electron more easily then it is said to be more non-metallic. क्लियर? आप इतनी बात याद रखना है आपको. नाउ फ्रेंड्स नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिस्कस करते हैं. नेचर ऑफ ऑक्साइड्स.
तो फ्रेंड्स आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th लेवल तक, 9th में भी पढ़ा होगा, ऑक्साइड्स बेसिकली बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, एम्फोटरिक ऑक्साइड्स होते हैं, एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद रखना है, क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जांपल्स दिए होते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच इज बेसिक और विच इज एसिडिक और विच इज एम्फोटरिक और न्यूट्रल। तो बहुत आसान है फ्रेंड्स, बस इसको ध्यान से देखना है। बेसिक ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। ओके फ्रेंड्स, आप मेटल्स को आसानी से पहचान लोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, मेटल होगा। ओके फ्रेंड्स, मेटेलिक दो एटम्स दिए हैं, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, वो बेसिक मेटल होगा, एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। ओके फ्रेंड्स, एलिमेंट्स दिया है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 और 7 है, देन इट इज कॉल्ड, इट्स ऑक्साइड इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। अब यहां पे कुछ एक्सेप्शन है फ्रेंड्स, याद रखना है। ऑक्साइड्स which are both acidic and basic, acidic and basic are called amphoteric oxides, are called amphoteric oxides। ओके फ्रेंड्स, नॉर्मली आपको याद रखना है, मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होंगे, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होंगे, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि बेसिक भी होंगे, एसिडिक भी होंगे, एंड दोज ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, दोज आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो फ्रेंड्स याद रखना है, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, लेड, जिंक and tin are amphoteric in nature, ओके फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, मेटल है, लेकिन ये बेसिक नहीं होगा। ये एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक एंड टिन के ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। देन फ्रेंड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, oxides which are neither acidic nor basic are called neutral oxides। Okay friends, which is neither acidic nor basic is called neutral oxides। और आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड्स। एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने पढ़ा ऑक्साइड्स, तो ऑक्साइड्स बेसिकली बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर,
some oxides are both basic and acidic. They are called amphoteric oxides, and the oxides which are neither acidic nor basic are called neutral oxides. Oxides of aluminium, lead, zinc and tin are amphoteric in nature, while oxides of hydrogen and carbon, water and carbon monoxides are neutral oxides. क्लियर है फ्रेंड्स? आप नोट कर लो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Clear friends? Now next, chemical reactivity. Chemical reactivity. फ्रेंड्स, ये केमिकल रिएक्टिविटी सीखना है. अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे, मैंने पहले दिन ही कहा था, इस चैप्टर से क्वेश्चंस वेरिएशन बेस्ड आएंगे. एलिमेंट्स 4-5 एलिमेंट्स दिए हैं. वी हैव टू टोल्ड दैट विच हैज मोर एटॉमिक साइज, विच हैज मोर आयोनाइजेशन एनर्जी, विच हैज मोर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. ये सारे वेरिएशंस हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमको अच्छे से फेमिलियर होना चाहिए. तो उसी में अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्टिविटी. फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब क्या? तो केमिकल रिएक्टिविटी को दो पार्ट में पढ़ेंगे. एक मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी और एक नॉन मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी. तो मेटल्स का मतलब सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन लूज करने से होगा. द मेटल विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स मोर इजली, द मेटल विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स मोर इजली is said to be more chemically reactive. अभी जैसे सोडियम और पोटेशियम में देखा था, सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सोडियम और मैग्नीशियम में देखा था, सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था. सो सोडियम is said to be more chemically reactive compared to magnesium. Okay friends, तो for metals the metal which loses electron or electrons more easily is said to be more chemically reactive. ओके फ्रेंड्स, सोडियम और मैग्नीशियम का एग्जांपल अभी हमने देखा था. वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन. फ्रेंड्स, नंबर ऑफ शेल इक्वल है, तो न्यूक्लियर चार्ज सोडियम का कम है, अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. सो इट इज सेड टू बी मोर केमिकली रिएक्टिव कंपेयर टू मैग्नीशियम. Na is more reactive than Mg, मैग्नीशियम. अब फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल देखते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम कॉन्फ़िगरेशन 281 and the configuration of potassium is 2881. अब फ्रेंड्स, नंबर ऑफ शेल्स डिफर कर रहे हैं. सोडियम में 3 शेल है, while potassium has 4 शेल. It is clear that potassium loses electron more easily because nuclear charge का valence shell से distance ज़्यादा है. So it is said to be more chemically reactive compared to sodium. So potassium is more reactive. Than sodium. Okay friends,
So chemical reactivity of metals. फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया था तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स हमने देखा, मेटल विच लूजेस इलेक्ट्रॉन मोर इजिली इज सेड टू बी मोर केमिकली रिएक्टिव। तो देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ शेल, व्हेन नंबर ऑफ शेल्स आर इक्वल देन वी सी न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज जितना कम होगा उतना ही ज्यादा केमिकली रिएक्टिव होगा। सो वी कैन से chemical reactivity is universally proportional to nuclear charge। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी मेटल्स के लिए। एंड वी कैन से केमिकल रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स जितना ज्यादा होगा मेटल में उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड इज सेड टू बी मोर केमिकली रिएक्टिव। क्लियर फ्रेंड्स? तो मेटल्स का केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब मेटल विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स मोर इजिली इज सेड टू बी केमिकली रिएक्टिव। ठीक है दोस्तों। नाउ फॉर नॉन मेटल्स जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। फॉर नॉन मेटल्स the non-metal which gains electron or electrons more easily is said to be chemically reactive। Okay friends, suppose there is sulfur and chlorine। क्लोरीन का कन्फिगरेशन 287 होगा और सल्फर का कन्फिगरेशन 286 होगा। फ्रेंड्स, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है और सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। It is clear chlorine gain electron more easily, so chlorine is said to be more chemically reactive compared to sulfur। Chlorine is more chemically reactive compared to sulfur। ओके फ्रेंड्स, तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा नॉन मेटल। क्लियर? देखो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज सल्फर और क्लोरीन में क्लोरीन पे ज्यादा था और ये ज्यादा केमिकली रिएक्टिव है, तो न्यूक्लियर चार्ज से भी हम चेक कर सकते हैं। सो वी कैन से केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स is directly proportional to nuclear charge, while chemical reactivity of non-metals is inversely proportional to number of shells। ओके फ्रेंड्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं।
हम लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लेके केमिकल रिएक्टिविटी तक देखा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल मेमोराइज करना है, याद रखना है। फिर अगली क्लास में हम लोग वेरिएशंस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अक्रॉस अ पीरियड जाने पे एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट होगा, डाउन द ग्रुप आने पे क्या इफेक्ट होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेल्स, ये सारी बातों को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। और क्वेश्चंस वहीं से एग्जाम्स में आते हैं, डेफिनेशंस इस चैप्टर से बहुत कम आते हैं, बट आप क्वेश्चंस तभी सॉल्व कर पाओगे जब सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल याद रहेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट्स किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इतनी बातें आप बिल्कुल याद रखोगे और पूरी सतर्कता के साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखोगे। कोरोना से बचने के जितने भी प्रिकॉशंस है आपको उसको सीरियसली लेना है, घरों से बाहर कम से कम निकलना है, और आप लोग घर वालों को भी ये मैसेज दोगे, पूरा का पूरा प्रिकॉशन रखना है और इसको पूरा याद रखना है। फ्रेंड्स, कल इस पे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने के बाद फिर से जो एक्सेप्शंस है इस चैप्टर्स में, केमिस्ट्री में ढेर सारे एक्सेप्शंस वैसे भी होते हैं, तो जो एक्सेप्शंस है उसको एक बार में करके पूरा डिस्कस करेंगे, फिर ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये चैप्टर आप पूरे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना है, कल क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।